Hello students, how are you? Okay, in previous lecture you already learn about the so many theorems, means the formulas and also the proof. Now use this proof or from this examples, right? So your practice is better. Okay, and remember this formula is in a better way, right? So let's start today's lectures, okay, of this solution of these sums. Okay, first of that, find the value of the all trigonometric function from the 120 and 150. You already know that 0, 30, 45, 60, 90, okay, they are the tabulate value, but then after, okay, the pi, 3 pi by 2, matlab the pi, that means 180, 3 pi by 2, 270, 2 pi, that means 360, they are the angles. Okay, so we find out all the trigonometry ratio. Chalo, so the solution, question number 1 is the first is sine 120. Okay, we find out the value of 120 of the all trigonometry ratio. So is equal to here, so sine 120, that means we written as it is 180 minus 16, right? 180 means the pi, so pi minus theta. You remember the table, okay, last time, okay, in previous lecture, okay, summary, okay, the summary of this. So pi minus theta is equal to, okay, sine theta, because pi minus theta is the second quadrant sine is always positive. So you put here the sine 16. What is the value of sine 16? Sine 16 is equal to under root 3 by 2. Chalo, clear? Then after, okay, cos 120, okay, so cos 120 is equal to cos again 180 minus 16. So here, okay, pi minus theta, पाई है तो फंक्शन नॉट चेंज, पाई माइनस थीटा. चलो क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, सो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस कॉस, एंगल थीटा कितना है 16, नाउ माइनस 1 बाई 2 बिकॉज कॉस 60 1 बाई 2, आगे साइन माइनस है सो माइनस, अगेन 10, ओके 120, सो 10 120, सो यू पुट हियर 10 180 minus 16, so therefore again 10 16, but pi minus theta, second quadrant 10 also negative, so then now 10 60 is equal to under root 3, so here answer is equal to minus under root 3. Is very useful. Okay, so cot 120, so therefore cot again 180 minus 16, so we put here the cot 16, again cot in second quadrant negative, so negative, so cos 16 is equal to minus 1 upon under root 3. Then after cosec 120, so cosec 120, so we written here cosec 180 minus 16, right? Now pi minus theta, second quadrant cosec positive, so here the cosec 16, so cosec 16 matlab sin 16 root 3 by 2, so either 2 upon under root 3 but positive. Similarly sec 120, right? So sec 120, that means the sec again 180 minus 16, pi minus theta, second quadrant cos also, sec also negative, so therefore minus sec 16, so sec 16 matlab cos 16 how much, 1 by 2, so 1 by 2 that means minus 2, sec 60 क्या होगा minus 2. ओके, तो ऐसे हम लोग वैल्यूज़ को रिमेंबर करते हैं. ओके बच्चों, सो नाउ द अगेन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2, राइट, 120 and 150, अंडरस्टैंड. ओके, सो नाउ दिस इज वन क्वेश्चन 2 फॉर द result 2. So here first of that बच्चों angle number 2 150, so first of the sine 150, then after cos 150, okay 10 150 we need, okay cot 150, sec 150 and cosec 150. चलो clear. Now sin 150, sin 50 we written is a sin 180 minus 30, am I right? 180 minus 30, that means 150, pi minus theta, second quadrant pi है तो function not change, so only the sin 30,
सो वैल्यू ऑफ साइन 30 इज इक्वल टू 1/2. अंडरस्टैंड? चलो सिमिलरली बोलो, या हियर द cos 180 minus 13, तो 180 minus 30 150, तो पाई माइनस थीटा. इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, तो cos 30 इज इक्वल टू minus under root 3/2. Understand? Now the 10 15 similar way, 10 180 minus 13, right? So pi minus theta, 10 pi minus theta, oh only 10 theta, right? But the quadrant 2, so negative, so 10 30 minus 1 upon under root 3. Again cot 180 minus 13, right? So cot again pi minus theta, so minus cot theta, and cot 30 minus under root 3. So clear? Understand? Oh, sec 150, so again sec 180 minus 30 is equal to pi minus theta again, so sec pi minus theta, okay, so sec theta, sec 13, but in second quadrant negative sec 13, तो cos 13 कितना था, so minus 2 upon under root 3. Got it? Then after यहाँ पे cosec, so cosec 180 minus 13, so 180 minus 13 cosec, तो माइनस की जगह पे a प्लस, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में cosec पॉजिटिव होता है, तो cos 13 मतलब sin 30, sin 30 1/2, तो cos कितना होता है 2 बट पॉजिटिव. ओके, तो आप ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज जो एंगल जो अननोन है टेबुलेट के अंदर, उसकी वैल्यू आप ला सकते हो एज अ रेडियट फॉर्म, एज अ डिग्री फॉर्म. अंडरस्टैंड? राइट. चलो नाउ द सो दैट sin 105 plus cos 05 angle is equal to 1 upon root 2. Now question number 2. फर्स्ट ऑफ दैट, सो दैट, सो LHS क्या शो करना है हमें, साइन 105 प्लस कॉस, ओके 105. नाउ साइन 105 क्या लिखा है हमारे पास, साइन 105 क्या करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन 105 की बात हो रही है, तो आप ऐसे कौन से एंगल थे जो आपको इजी रहे, तो साइन 60 प्लस साइन 45, राइट, प्लस कॉस 60 प्लस 45 हो गया 105 105. अब आप जानते हैं, आपने सारी फॉर्मूला डिराइव की है, साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई, यस यही फॉर्मूला आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे. तो चलो सबसे पहले बच्चों ये x है और ये y एंगल है, तो आप क्या लिखोगे, आप साइन x इंटू कॉस वाई, राइट, प्लस कॉस x एंड इंटू साइन वाई, राइट, प्लस कॉस की बारी, सो दे आर द कॉस x इंटू कॉस वाई, राइट, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस साइन 16 एंड इंटू साइन 45. चलो क्लियर. साइन 60, तो साइन 60 जो है वो क्या है, आप जानते हो अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस 45 क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2, प्लस कॉस 16 क्या है, कॉस 16 है 1/2, साइन 45 है 1 अपॉन अंडर रूट 2, प्लस कॉस 16 अगेन कॉस 16 जो नॉर्मली है वो आपके पास है 1/2, ओके, इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2, माइनस साइन 60 है रूट 3/2 एंड 45 है 1 अपॉन रूट 2. तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म और ये टर्म तो अपने आप क्या हो गया, कैंसल, प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2, 2 कट, वी गॉट 1 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू RHS. आ गया समझ में? तो अब हमने ऐसे कौन सी फॉर्मूला साइन x प्लस वाई और कॉस x प्लस वाई में कन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन ला दिया. बस यही पैटर्न आपको पूरे थर्ड चैप्टर में सीखनी है. जो हमारा NCERT पोर्शंस है वो बहुत छोटा है, लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये सारे फॉर्मूलाज फिट हो जाएंगे, ओके, माइंड के अंदर. वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा कैलकुलस इसी के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, आपका मान लो 60% जो भी सिलेबस होगा वो इसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर होगा, मतलब ऐसे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री. तो ये आपका बेस है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आप 11th में हो, राइट. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द साइन 15 कॉस 15 टेन 15 ऐसे अलग अलग वैल्यूज. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं बच्चों. यहाँ पे
सो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कैलकुलेट साइन 15, राइट। तो चलो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी मर्जी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट वी हैव द साइन 15, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 13, कोई भी ले सकते हैं, 60 माइनस 45 भी आप ले सकते हो, 15 ही हुआ ना, वैल्यू तो सेम ही देगा, राइट। चलो अब शुरू हो जाओ। तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन x माइनस वाई, सो साइन x कॉस y माइनस कॉस x एंड इनटू साइन y। चलो क्लियर, वैल्यू याद करते रहो। साइन 45 1 अपॉन रूट 2, कॉस 13 रूट 3/2, राइट, माइनस cos 45 1 upon under root 2 sin 31/2 under root 3 upon 2 root 2 minus 1 upon 2 root 2. So you got the value root 3 minus 1 upon 2 root 2. चलो क्लियर, ये आपकी वैल्यू आ गई। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, रूट टू करके, और मतलब उसको कन्वर्ट करके, बट इट्स ओके, वैल्यू इज राइट। चलो नंबर 2 क्या है बच्चों, नंबर 2 के अंदर ऐसे ही cos 15। चलो cos 15 तो मैं सेम एंगल लूँगा यहाँ पर भी, तो cos 45 माइनस 13 हो गया cos 15। तो cos x माइनस वाई की फॉर्मूला बोलो क्या आएगी, तो आप कह सकते हो cos 45 इंटू cos 13 x माइनस वाई, माइनस है तो प्लस साइन 45 एंड इंटू साइन 13। चलो क्लियर, इतना आपने काम कर दिया। cos 45 क्या है, तो cos 45 1 अपॉन रूट 2, ओके। cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 अंडर रूट 3/2, राइट, प्लस साइन 45 1 अपॉन रूट 2 साइन 13 1/2, राइट। सो चलो वी गॉट यहाँ पे अंडर रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, आपने ऐड कर दिया एलसीएम लेके रूट 3 2 रूट 2 इज अवर आंसर। इट इज़ वेरी इजी, अंडरस्टैंड, क्लियर। सो ये आपने 2 रिजल्ट ऐसे ला दे। अब हम जाते हैं 10 15 लाने के लिए, ओके। तो चलो इसी के अंदर हम लोग 10 15, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आप टेबुलेट वैल्यू का यूज़ करके और फॉर्मूला यूज़ करके ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो जो टेबल के अंदर नहीं है, बट हम बना सकते हैं, राइट। चलो थर्ड वन, सो क्या है हमारे पास 10 15, कितना है बच्चों 10 15, क्या लिखेंगे, वही एंगल बदल दो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। 10 45 माइनस 10 13, चलो क्लियर। अब देखो यहाँ पे 10 अल्फ़ा, तो 10x प्लस वाई की फॉर्मूला याद करो। चलो मुझे आपको 10x माइनस वाई क्या था, तो 10x माइनस 10y, राइट, अपॉन क्या था 1 प्लस, माइनस है तो प्लस करना है, 10x प्लस 10y, सो 10 45 इंटू 10 13। चलो बच्चों अब 10 45 1 होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है, अपॉन 1 प्लस यहाँ पे होगा 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3, अगेन एलसीएम टेक रूट 3 माइनस 1, ओके, और यहाँ पे आएगा रूट 3 प्लस 1, गॉट इट, दिस इज अवर आंसर। समझ में आया बच्चों, इसका सिंप्लीफाई करना चाहकर ज़रूरत नहीं है तो अभी एज इट इज छोड़ दो। पता चला ना, ये एलसीएम लिया आपने, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, और यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ये रूट 3 कट होगा एंड यू गॉट द आंसर। क्लियर, वेरी इजी टू, ओके। चलो हम ऐसे ही हम लोग कहाँ पे चलते हैं, 75 पे चलते हैं। क्या करते हैं, 75 ढूंढते हैं। चलो ये आ गया समझ में, कॉपी दैट दिस। नाउ साइन, तो 75 देखो हमने वो एंगल रखा वही हम लोग यूज़ कर देंगे, ओके। साइन 75 है ना, तो क्या किया था 45 प्लस 30 कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे x प्लस वाई की फॉर्मूला लगेगी, बोलो साइन x प्लस वाई, तो साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x एंड साइन y। चलो क्लियर। अब यहाँ पे देखो साइन 45 कितना होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड कॉस 30 होता है रूट 3/2 प्लस ये हुआ 1 अपॉन रूट 2 एंड यहाँ साइन ए 1/2। चलो क्लियर। अगेन अंडर रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ओके।
जो आगे 3 सम के अंदर प्रोसीजर के वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, √3 + 1 अपॉन 2√2। तो ऐसा MCQ फॉर्म डायरेक्ट आए तो याद रख लेना, ओके, बाय प्रैक्टिस से याद रह जाएगा। चलो ठीक, वैसे फिफ्थ, ये फोर्थ था, चलो फिफ्थ, चलो क्या दिया है फिफ्थ में आपको, कॉस दिया है बच्चों, कॉस 75। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, कॉस क्या है 45 + कॉस 13, राइट। चलो चेक कर लो एक बार, cos 45 इंटू cos 30, राइट ना, cos है प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे लिखोगे sin 45 एंड इंटू sin 13। चलो क्लियर, cos 45 कितना होता है 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस 1/√2, sin 30 1/2, यू गॉट √3/2√2 माइनस 1 2√2। So we got √3 - 1/2√2। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड। तो ये आपने फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ला दिया। चलो बच्चों अब 6 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर 6 हम लोग सॉल्व कर देते हैं अब। तो फिफ्थ के बाद 6 में हमें क्या दिया है, तो 6 के अंदर है हमारे पास 10 75। तो ऐसे ही इसको भी ऐसे करेंगे 10 45 + 13, राइट। तो x और a y, तो 10x + y की फॉर्मूला 10x + y, 10x + 10y अपॉन 1 - 10x 10y। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 10x + 10y अपॉन 1 + 10x और 10y, राइट। चलो क्लियर, 10 45 1/√3, अगेन यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, so 1 - 1/√3, take the LCM, √3 + 1/√3, √3 - 1/√3, वो आपने कैंसिल कर दिया। so you got the answer is equal to √3 + 1/√3 - 1। ओके, तो हमें यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ जो है आपके सामने वो हमें मिल गई। तो हम ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ ओके फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इट्स गुड सम 4। चलो क्वेश्चन 4, इवेल्यूट, क्या इवेल्यूट करना है बच्चों, 10 13π/12, ओके, इरिडियन फॉर्म आया। यहाँ पे आइडिया लगाना, जितना ये प्रैक्टिस करोगे ऐसे आइडियाज़ आपको आते रहेंगे और ऐसे बहुत सारे सॉल्व। इससे क्या होगा, जितनी भी फॉर्मूलाज है ना वो रिकॉल हो जाएगी, ओके, और याद भी रह जाएगी। तो यहाँ पे एक हम लोग क्या करेंगे 10 π + π/12, राइट। एलसीएम ले लो 12 + π, तो 12π + π 13π/12 आ गया। ओके, अब आपका काम यहाँ पे शुरू होगा। चलो क्या करोगे बच्चों, 10π + θ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है 10 पॉजिटिव, तो 10π/12। ओके, तो 13π/12 और 10π/12 की वैल्यू सेम आएगी। अब देखो 10π/12 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10π/3 - π/4 लिख सकता हूँ। चेक कर लो, 4π - 3π यानी π/12, अंडरस्टैंड। ओके, अब तो आपके लिए काम आसान हो गया, क्यों, अब जानते हो 10x - y, तो 10π/3 इंटू 10 - 10π/4 अपॉन 1 + 10π/3 इंटू 10π/4, अंडरस्टैंड, राइट। चलो 10π/3 मतलब 1060, 1060 मतलब √3, 10π/4 क्या होता है 1 प्लस, ये तो 1 होगा और 10 क्या होगा √3। सो वी गॉट √3 - 1 अपॉन √3 + 1। चलो मैं उसको शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर दूँ तो -1 अपॉन √3 - 1, तो इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा √3 ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो √3 - 2 + 1 अपॉन यहाँ पे तो 3 - 1। सो वी गॉट 4 - 2√2 डिवाइड बाय 2, आपने 2 कॉमन निकाल दिया, सो 2 - √2 अपॉन 2, 2 कट, तो यू गॉट 2 - √2। तो आपको एक इसकी 10π/12 या 13π/12 की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई। गॉट इट बच्चों, चलो क्लियर, चेक कर लो, बराबर 3 + 1 4 ही होगा, 2 कॉमन निकाल दो, एक कट हो जाएगा अल्टीमेटली। नाउ हाँ, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आ गया, कॉपी इट।
राइट। चलो अब यहाँ पे इवेल्यूट 5 1 साइन पाई बाई 12। ओके, तो चलो क्या करोगे, यहाँ पे साइन पाई बाई 12 लाना है। तो कौन सी वैल्यू आप यहाँ पे इक्वल करोगे तो प्रॉब्लम होगा। 5 यहाँ पे हम कौन सी लेंगे, पाई बाई मतलब 12 आए, तो आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज़ पॉसिबल है। बोलो क्या यूज़ करोगे, बताओ। पाई बाई 12 लाना है, ऐसा हो कर सकते हो। अगर आप पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 ले लो, एलसीएम मान लो कि 24 है आपके पास, मैंने डायरेक्ट किया है इसलिए। तो इधर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, और यहाँ पे तो मैं प्लस की जगह पे मान लो माइनस कर दूँ, तो ये 6 पाई हुआ, ये 4 पाई हुआ। ओके, तो 2 पाई बाई 24, तो पाई बाई 12 आ जाता है, राइट। तो ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी साइन क्या करूँगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, राइट बच्चों। ओके, अब देखो ध्यान से, बहुत इजी वे है इसको समझने के लिए इन शॉर्ट में। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, साइन पाई बाई 4, तो मैं अभी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कर रहा हूँ, तो साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 4, ओके, एंड साइन पाई बाई 6। चलो आ गया समझ में। अब सिंपली वैल्यू इनपुट कर देते हैं। चलो इनपुट क्या है वैल्यू, तो साइन पाई बाई 4 1/√2 इंटू कॉस पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 कौन सी वैल्यू है, 30, कॉस 30 मतलब √3/2। चलो माइनस कॉस पाई बाई 4 अगेन, तो 1/√2, और साइन जो है साइन पाई बाई 6, बोलो साइन पाई बाई 6 1/2 अगेन √3/2√2 माइनस 1/2√2, सो √3 माइनस 1/2√2। देखो राइट, ये वैल्यूज़। ओके बच्चों, समझ में आया ये वाला, बराबर है। तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो समझने थे, तो आपने वो तो आंसर के तौर पे समझ लिए, राइट। चलो आगे और एक क्वेश्चंस जो है अल्टीमेटली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं अब आपको यहाँ पे सेम वे ये चेंज कर देता हूँ, तो हमारा सेकंड जो फॉर्मेशन है उसके लिए, हाँ, और किसी के लिए नहीं। तो चलो क्या होगा, क्वेश्चन 5 के अंदर, क्वेश्चन 5 का 2 जो है हमारे पास, साइन 5 पाई बाई 12 बच्चों। तो साइन पाई बाई 12 जो है वो क्या आएगा यहाँ पे, तो देखो साइन पाई बाई 12 मतलब क्या लिख सकते हो, साइन अल्टीमेटली, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई बाई 4 वही वाला प्लस पाई बाई 6। चेक करो 24, तो 10 पाई बाई 24 आएगा, वो कट करोगे तो 5 पाई बाई 12 आ जाएगा, राइट। तो मतलब एंगल तो सेम हो गया। अब देखो क्या करेंगे, सेम वे यहाँ पे आप करोगे साइन पाई बाई 4 एंड कॉस पाई बाई 6 प्लस, साइन है तो प्लस ही रहेगा, कॉस पाई बाई 4 एंड साइन पाई बाई 6। चलो पुट द वैल्यू, पाई बाई 4 45 होता है, 1/√2 इंटू पाई बाई 6 मतलब 30 है √3/2। चलो प्लस ये अल्टीमेटली क्या होगा, कॉस पाई बाई, हाँ बोलो, कॉस पाई बाई 4 1/√2, साइन पाई बाई 6 क्या होता है, तो 31/2 √3/2√2 प्लस 1/2√2, वी गॉट √3 प्लस 1/2√2, राइट। दिस इज द वैल्यूज़। ओके बच्चों, समझ में आ गया, इसको कॉपी कर लो। ऐसे बहुत सारे सम हम लोग अभी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, राइट, क्या है, प्रूव दैट, अलग अलग हमें इवेल्यूट करना है। तो सबसे पहले होगा 6 का फर्स्ट LHS। चलो आपके पास LHS क्या है, तो साइन 7 पाई बाई 12, ओके, एंड कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 12 एंड साइन पाई बाई 4, राइट। थोड़ा ध्यान रखना, तो आप जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े ये सब रिकॉल है, उसके लिए ये सारी एक्सरसाइज है, राइट। तो अब देखो साइन पाई बाई 12, ओके, पाई बाई 12 एंगल 7 पाई बाई 12 एंगल, पाई बाई 4 पाई बाई 4, साइन कॉस मतलब कॉस साइन आए तो सीधी बात है साइन की फॉर्मूला होगी, राइट। कॉस अलग साइन अलग है तो कॉस की फॉर्मूला होगी, ओके, ऐसा दिमाग में क्लियर रखो। तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो किसकी फॉर्मूला हो गई, साइन, हाँ राइट। तो
तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन 7 पाई बाई 12, ओके, साइन एक्स माइनस वाई। चलो अंडरस्टैंड, इसको स्प्लिट करो तो कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, राइट, यही मिल रहा है। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, साइन, टेक द एलसीएम, एलसीएम कितना है तो कि 12, तो 7 पाई माइनस यहाँ पे कितना होगा 3 पाई, अंडरस्टैंड, 4 3 12, तो इज इक्वल टू क्या मिला आपको, साइन 4 पाई बाई 12, एंगल के अंदर है तो कट हो सकता है ना, तो साइन पाई बाई कितना मिला, पाई बाई 3, एंड साइन पाई बाई 3 कितना होता है 60, 60 मतलब अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू RHS। चलो क्लियर है, कितना आसान, बराबर ना, ओके। तो चलो अब मैं इसी तरह नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, ध्यान से देखो LHS के अंदर, तो LHS में हमारे पास है साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 12 प्लस कॉस पाई बाई 4 एंड साइन पाई बाई 12, अगेन साइन कॉस, जब भी साइन कॉस आए तो सीधी बात है साइन की फॉर्मूला होगी, एंगल सेम है, पाई बाई 4 है, पाई बाई 12 है, राइट, ओके। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12, चलो अंडरस्टैंड, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, आपने ब्रैकेट में बना दिया LCM 12, सो 3 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू हो गया साइन 4 पाई बाई 12, सो इज इक्वल टू हमें मिल गया साइन पाई बाई 3 अगेन, तो साइन पाई बाई 3 होता है रूट 3/2 एंड दिस इज द आवर आंसर RHS। चलो क्लियर, ये बात समझ में आ गई। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है बच्चों, 3 के अंदर cos 2 पाई बाई 3 cos पाई बाई 4 माइनस साइन 2/3 इंटू साइन पाई बाई 4, राइट। तो यहाँ पे चलो LHS cos 2 पाई बाई 3 cos पाई बाई 4 माइनस साइन 2 पाई बाई 3 एंड साइन पाई बाई 4, राइट। एंगल तो सेम मिल रहे हैं, cos वाले अलग, साइन वाले अलग, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है 2 पाई बाई 3 मतलब कितना एंगल, तो 180 से आप डिवाइड कर दो, 360 तो 120 हुआ, तो 120 मतलब क्या लिखते हैं हम लोग 120 है, तो हम लोग सेकंड क्वार्टर में माइनस करेंगे पाई माइनस 60, राइट, 60 मतलब पाई बाई 3, तो मैं इसको खाली इसको और यहाँ पे इसको, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, समझ में आया, ये 120 एंगल है, तो 180 माइनस 60 120 होता है ना, आगे हमने किया है सॉल्व, राइट, ओके, इनटू कॉस पाई बाई 4 एज इट इज़ माइनस साइन क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 4। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें अल्टीमेटली टैबुलेट वैल्यू से ही आंसर लाना है ना, इसीलिए। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, बट विच एंगल विच क्वाड्रेंट, सेकंड, तो सेकंड में कॉस तो नेगेटिव होता है, इनटू कॉस पाई बाई 4 माइनस यहाँ पे क्या है साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई ठीक, और सेकंड क्वार्टर में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, पाई है तो फंक्शन नॉट चेंज, ओके, इनटू साइन पाई बाई 4, बस यही इंपॉर्टेंस था, बाकी तो अब ईजी है। अब पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 मतलब 16, और 16 मतलब 1/2 इंटू 1/√2 माइनस साइन पाई बाई 3, साइन 16 होता है √3/2 और ए होता है 1/√2, तो यहाँ पे -1 2/√2 माइनस √3 2√2, राइट, माइनस कॉमन निकाल दो तो हो गया √3 प्लस 1/2√2 इज इक्वल टू RHS। ओके बच्चों, ये जो आज हमने जितने भी समझ में आ गया, आज जितने भी सम्स हमने जो सॉल्व किए वो हमारी फॉर्मूला बेस्ड थे, ताकि आपकी फॉर्मूलाज आपको याद रह पाए। ओके, ये कोई टेक्सुअल सम नहीं है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए हम लोग ऐसे बहुत सारे सम्स ओके और असाइनमेंट के फॉर्म में करने चाहिए। ओके, जो मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा उसी असाइनमेंट के ऊपर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, तो लगातार ऐसे क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करते रहो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके एंड बाय बाय।